welcome to Engineers Academy and Nimbus Learning YouTube channel. So, guys, today what we are going to talk about. So, everyone knows that the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, which is a mini Ratna PSU, which is going to conduct the interviews for the different branches. Suppose mechanical branches, civil branches, electrical, electronics, and instrumentation. So, at very nearest, the instrumentation branch will have the interviews for the MRPL. MRPL, that is, I have also talk about here. MRPL, Mangalore Refinery Petrochemicals Limited. This is a mini Ratna PSU, which is the subsidiary of the ONGC also. Okay. So, guys, in today's session, we are going to talk about the some interview questions about which I'm going to discuss, and that interview questions will correlate from the subject control system. So, guys, this session is especially for the instrumentation branch students, okay, which are just going to for the interview of MRPL on 16th of March 2023. Okay, so first of all, I want to say best of luck, guys. Okay, I think your preparations are going very well. This particular MRPL vacancy, I want to tell something about it first of all. So this is uh, this will not conduct a written exam. This is from the GATE 2022 written examination. GATE 2022 से जो हमारे पास इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कॉल हुए हैं और उसके बाद जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. ओके गाइस, तो फ्रॉम द जीडी एंड इंटरव्यू, जीडी और इंटरव्यू में साफ-साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है दैट देयर इज नो सेपरेट मार्क्स फॉर दैट वन, और कोई स्पेसिफिक मार्क्स भी नहीं बनाए गए हैं. इंटरव्यूज के लिए एक स्पेसिफिक मार्क्स दे दिया है जो जीडी के अंदर ही इंक्लूड हो गया, दैट इज 50 मार्क्स. So, guys, we are here to talk about some important interview questions regarding the control system. Guys, instrumentation के सभी students को सबसे पहले मैं बता दूं that if you are the choice there that what are your favorite subjects. So for that you can tell the control system as your favorite subjects. If you are planning for the control system as your favorite subject, then some important interview questions will be here. ठीक है, तो guys start करेंगे बिना किसी डिले के. MRPL, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. Okay, so let's start from the control system. Some questions, guys. These questions are especially for the instrumentation branch, but other branch students like electrical and EC, which have the common subject control system, as all have instrumentation branch students also have this subject. So for all three branches it is important. Okay, but especially this session is for the instrumentation branch student for the MRPL interview. Okay, so I'm going to start the session with the first question. सपोज आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा है गाइस, प्रोवाइड एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू द फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेश्चन दैट कंट्रोल सिस्टम has been defined in how much categories, or you can say that what are the types of a control system. So if the question asked, first of all, what are the different types of control system, then your answer will be simply, listen very carefully na. So your answer will be that there are two types of control system, that is open loop system and closed loop system. तो पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना. सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. तो आप लोगों को जैसे ही व्हाट आर द टाइप्स पूछा तो आपको सिंपली सिर्फ ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, यानी समझाने बैठ गए ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है एंड ऑल दैट ना. आप लोगों को सिंपली सिर्फ अपने एक वर्डिक में एक लाइन में आंसर देना है दैट कंट्रोल सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम. देन द सेकंड क्वेश्चन विल राइज दैट provide any differences, define the open loop and control closed loop system. So if you are going to define both of these systems, then you have to differentiate both of these also. तो मैं यहाँ मेन डिफरेंसेस लिखा रहा हूँ, डिफरेंसेस के बेसिस पर आप इन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं. क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ मैंने आप लोगों को एनी थ्री डिफरेंसेस के बारे में पूछा. थ्री डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो गाइज मैं आपको थ्री नहीं, थ्री से ज्यादा बता देता हूँ जो आप वहां बता सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. सपोज गाइज यहाँ हमारे पास है, हियर इट इज,
open loop system, open loop control system will be, and the second one, here it is. Here we have closed loop system. Closed loop. Try to give your answers in English because Mangalore is in the south side, as you all know that, and it is also a mini Ratna company. So the preferred language will be English, I think. Okay, so मैं समझाने के हिसाब से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, बट द इंटरव्यू योर इंटरव्यू लैंग्वेज प्रेफरेंस शुड बी ऑलवेज इंग्लिश if you are going for the any PSU interview. Okay, so guys, open loop and closed loop system. So the main difference is what? Guys, in open loop system, there is no sensor, and in closed loop system there is a sensor. I think everyone knows about the actual diagram of the open loop system. Open loop system में हमारे पास फिजिकल सिस्टम होता है, कंट्रोलर होता है, दैट्स ओके. बट यहाँ क्लोज लूप सिस्टम में आपके पास कंट्रोलर फिजिकल सिस्टम के साथ साथ एक फीडबैक पाथ भी होता है जिसमें होता है सेंसर. क्लियर है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ब्रांच के स्टूडेंट्स को सबको पता होना चाहिए सेंसर के बारे में. ठीक है, तो गाइज आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज विदाउट सेंसर. इट इज विदाउट सेंसर, कोई सेंसर एलिमेंट नहीं होता है. और यहां हम लोग लिखेंगे इट हैज सेंसर इन फीडबैक पाथ. बैक पाथ, यहाँ हमारे पास सेंसर होगा गाइस, और वो हमारे पास होगा फीडबैक पाथ में, नॉट फॉरवर्ड पाथ में. द सेकंड डिफरेंस, the second difference will be what? As which system will be more accurate? So always remember that this is less accurate. Open loop is less accurate system, and this is more accurate system. More accurate. Third difference. Third difference is regarding the linearity. Always remember that in the open loop system, there is no linear relation between the output and input of the system. So you can say that it shows non-linearity. It shows more non-linearity. This is. And what about the closed loop system, sir? Guys, its output response will be linear, or you can say that it shows less non-linearity. It shows less. That means it is impossible to find the actual accurate output as same as the input. It means exact linear मिलना possible नहीं है. थोड़ा बहुत नॉन लीनियर होता है, बट वेरी लेस ना. इट शोज लेस नॉन लीनियर. इसमें नॉन लीनियरिटी इफेक्ट रिड्यूस होता है, ये भी ध्यान रखना है. नॉन लीनियरिटी एस होती है, एट्स ओके, या यू कैन ऑल्सो से लीनियर, दैट विल बी. द फोर्थ डिफरेंस, द फोर्थ डिफरेंस इज regarding the stability. That is also a very important point. So guys, open loop system is more stable. Always remember, this is the only thing in which ओपन लूप सिस्टम विल बी प्रीफर्ड. ओपन लूप सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे एक्चुअल एडवांटेज सिर्फ एक ही है गाइस, वो है आपका कौन? आप लोगों का स्टेबिलिटी. तो ध्यान रखना, हमारे ओपन लूप सिस्टम का सिर्फ एक ही मेन एडवांटेज है, ये मोर स्टेबल होता है, और ये हमारे पास लेस स्टेबल होता है. दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम कंपेयर टू द ओपन लूप सिस्टम. तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा. द फिफ्थ वन, if you also want to talk about the some differences also, तो सेंसिटिविटी के बारे में बोल सकते हो. तो गाइस, दिस इज मोर सेंसिटिव. इसका सेंसिटिविटी काफी हाई होता है. मोर सेंसिटिविटी, आप ये कह सकते हैं इसका सेंसिटिविटी लगभग 100% होता है गाइस ओपन लूप सिस्टम का. और क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास लेस सेंसिटिविटी, सेंसिटिव ये थोड़ा कम होता है, लेस सेंसिटिव. अब आप लोगों से सेंसिटिविटी के बारे में पूछ ले तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग कंट्रोलर के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं. आगे जाके हम लोग बात करेंगे सेंसिटिविटी एंड ऑल दैट, ठीक है ना. एक्चुअल में जब आप ये डिफरेंसेस बता रहे होते हैं तो इस वक्त जो जो वर्ड्स आप लोग यूज कर रहे हो, जैसे फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, जैसे आप लोगों से पूछ लिया एक्यूरेसी, कैसे डिफाइन करोगे एक्यूरेसी को, जैसे आप लोगों से पूछ लिया लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, जैसे आप लोगों से पूछ लिया स्टेबिलिटी अनस्टेबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया सेंसिटिविटी क्या होती है, इंटरव्यू यही खत्म हो जाता है. एक्चुअल में आप जैसे जैसे डिफरेंसेस बताओगे, जिन जिन वर्ड्स का यूज करोगे, तो ध्यान रखना आप लोग अपने डिफरेंसेस में अगर 3 डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं जैसे इस क्वेश्चन में, तो गाइज आप लोगों को उन्हीं वर्ड्स का यूज करना है जिन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है. जैसे कि आप लोगों ने
मोर स्टेबल, लेस स्टेबल बोला तो आपको स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द स्टेबिलिटी, क्योंकि आप कंट्रोल सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट 50% से भी ग्रेटर पार्ट गाइज आप स्टेबिलिटी पर ही डिस्कस करते हो, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन, आप लोग अपना सेंसिटिविटी के अलावा गाइज बता सकते हैं यहाँ पर हमारे पास और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे कि आप लोग डिस्टॉर्शन का इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, तो गाइज ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों का डिस्टॉर्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक्यूरेसी क्या है, कम है, तो डिस्टॉर्शन इफेक्ट ज्यादा होगा, है। ये सब चीजें आप लोग बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, है ना। डिस्टॉर्शन इफेक्ट इसमें कम होता है, दैट्स ओके। So I think these all are clear to you. ओके, तो गाइज आप इनमें से उन डिफरेंसेस को चूज करें जो आप लोगों को जिन वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो, ठीक है ना। तो गाइज ध्यान से सुनना, आप लोगों को अपने इंटरव्यू में आंसर करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझो आप लोग। अगर आप लोगों से पूछा है कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो आप लोगों को सिर्फ बोलना है ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, पूरा डिफाइन नहीं करना होता है, ध्यान रखना, जब तक आगे होके पूछे नहीं, क्योंकि आपने एक बार में पूरा डिफाइन कर दिया सर ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम होता है, जिसमें ओपन लूप जो होता है सर उसमें सेंसर नहीं होता, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड पाथ होता है, सर जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें सेंसर होता है जो फीडबैक पाथ प्रोवाइड करवाता है। फीडबैक हम लोग सर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे आउटपुट को हम लोग इनपुट से कंपेयर करके एरर फाइंड आउट कर सके और फिर उस एरर को हम लोग एलिमिनेट कर सके, इतना कुछ नहीं बोलना है, फिर तो इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया आपने। एक्चुअल में आपको अपना इंटरव्यू इंटरव्यूअर के हिसाब से नहीं चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है। अपने हिसाब का मतलब है, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा सर ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, चुप, उसके बाद चुप हो जाना है। अगर उसके बाद वो हैंड टू हैंड क्वेश्चन ना पूछे दैट व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज लूप सिस्टम, अगर वो हाथों हाथ ना पूछे, अगर पूछ लिया तो फिर आप उसका आंसर दो। अगर आप लोगों से हाथों हाथ ना पूछे और वो भी साइलेंट और आप भी साइलेंट, तो आप 2 सेकंड का पोज लोगे और उसके बाद अपना ओपन लूप और क्लोज लूप डिफाइन कर दोगे। वो 2 सेकंड का पोज आप लोगों से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंटरव्यू बोल रहा है भाई और बोलो, तब बोलना है, अपनी तरफ से नहीं बोलना है। तो अपनी तरफ से आपको अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से चलवाना है, यानी कि टाइम कंजप्शन करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, इस तरह से चलना है। तो देखो क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, जैसे मैं एक इंटरव्यूअर हूं तो मैं क्या पूछूंगा, ये पहले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे सिर्फ हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, तो आप लोग बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कैन बी कंट्रोल्ड या दैट्स आउटपुट कैन बी कंट्रोल्ड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस इनपुट। किसी रेफरेंस इनपुट के रेस्पेक्ट में हमारे डिजायर्ड आउटपुट को अकर करने के लिए अगर हम किसी फिजिकल सिस्टम को कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इसी को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। देन ही विल आस्क कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम आर देयर, देन यू विल आंसर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट इज ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम, सर ओपन इन ओपन लूप सिस्टम देयर आर ओनली 2 components दैट आर द कंट्रोलर एंड आवर फिजिकल सिस्टम एंड देयर इज नो फीडबैक पाथ, दैट्स ओके, बस इतना बोलना है। एंड व्हाट इज क्लोज लूप सिस्टम, तो आप लोग बोलेंगे सर इन द क्लोज लूप सिस्टम कंट्रोलर एंड फिजिकल systems are already existed but a additional component that is the feedback element in which the sensor will be located and this is our closed loop control system, that's okay। What is this sensor and what is its work, yeah, what is the work of feedback, then you will answer that the feedback, in the feedback the sensor will sense the output of the system, in the feedback the sensor will sense the output of the system and compare the input and output and provides the error in the system, क्लियर है। और ये एरर प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, कंपेरेटर करता है। कौन करता है, कंपेरेटर, जो आपके इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करवाता है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। तो या तो आप एक क्वेश्चन में सारे आंसर दे दो या आप खुद से थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हुए उस इंटरव्यू को अपने हिसाब से कंडक्ट करवाएं, यानी कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन की जगह उसको 5 क्वेश्चन बना दिया, यानी आपने शॉर्ट में आंसर दिया, क्वेश्चंस बढ़ते गए। और ध्यान रखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा होते हैं आप लोगों के मार्क्स गेन करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। तो इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखें कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा तो उसमें सारी जितना भी आपको आता है सब कुछ नहीं बोलना है, आप लोगों को जो पूछा गया एग्जैक्ट उसी का आंसर एक लाइन में देना है। और उसके बाद अगर वो वहां से पोज दे देते हैं यानी कि चुप रहते हैं तो आपको अपने आंसर को और आगे बढ़ाना है, अदरवाइज आप शॉर्ट एक लाइन में आंसर देंगे। क्लियर है गाइस। तो गाइस ये आप लोगों का मैंने आंसर दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ठीक है। और इससे कोरिलेटेड सारे डिफरेंसेस लिखवा दिए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
व्हाट इज द फीडबैक इन अ कंट्रोल सिस्टम? तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक वो एलिमेंट होता है जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेंसर कनेक्ट होता है। अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं, पेज पे बना देते हैं। फीडबैक जैसे कि एज यू ऑल नोस दैट हियर इट इज, सपोज दिस इज, guys, this is your reference input, और यू कैन ऑल्सो से इट एज अ कमांड इनपुट। हम लोग इसे प्रोवाइड करवाते हैं हमारे कंट्रोलर के पास। हियर इट इज अवर कंट्रोल, एंड कंट्रोलर जो आउटपुट देगा वो किसके पास आता है? दैट इज एट फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम हमारा एक क्या दे रहा होगा? आउटपुट। आप यहाँ पर अपना कंट्रोल्ड आउटपुट या डिजायर्ड आउटपुट लिख, कंट्रोल्ड या डिजायर्ड आउटपुट। अब गाइज हमें हमारे इनपुट और आउटपुट को आपस में कंपेयर करवाना है, बिकॉज द फिजिकल सिस्टम ऑलवेज हैव सम एक्सटर्नल डिस्टरबेंस और नॉइस फ्रॉम आउटसाइड। इसकी वजह से, इस नॉइस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से इनपुट और आउटपुट के बीच हमेशा डिफरेंस रहता है। तो गाइज इसे कैसे एलिमिनेट किया जाए? तो इसके लिए गाइज हम लोग एक फीडबैक पाथ यूज करते हैं। इसमें हमारे पास लगा होता है गाइज सेंसर का काम क्या है? सेंसर का काम है हमारे आउटपुट को सेंस करके यहाँ इनपुट के साथ कंपेयर करवाना। कंपेयर करने के लिए गाइज हमारे पास यहाँ होता है कंपेरेटर, गाइज जिसमें हमारे पास इनपुट तो प्लस में और आउटपुट जो सेंसर सेंस करके ला रहा है आउटपुट, वो माइनस में आता है। गाइज इनपुट और आउटपुट को यहाँ आउटपुट आ जाएगा, आपका सेंसर आउटपुट को सेंस करके लाएगा। गाइज इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करके यहाँ पर हम लोग हमारा एक एरर सिग्नल डिजाइन, और इस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग इस एरर सिग्नल को गाइज कंट्रोलर जो है वो एलिमिनेट करता है। जनरली एरर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पीआई कंट्रोलर यानी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज करते हैं। गाइज हमारी स्टेडी स्टेट एरर, एक्चुअल में एरर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द स्टेडी स्टेट, एज यू ऑल नोज, आई थिंक मेरे ख्याल से सब जानते हैं। एरर को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोलर हमारे पास जनरली हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर लगाते हैं, जो हमारी एरर को कम करता है, यानी हमारे डिजायर्ड आउटपुट को डिजायर्ड इनपुट के बराबर लेकर आता है। और जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाए तो दोनों का डिफरेंस गाइज यहाँ एरर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। गाइज आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फीडबैक इन द कंट्रोल सिस्टम? तो आपका आंसर क्या होगा? फीडबैक इज अ एलिमेंट, फीडबैक इज अ एलिमेंट, फीडबैक का मतलब आप सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, या फीडबैक इज अ ब्रांच, या तो आप ब्रांच बोल दे एलिमेंट बोल दे। फीडबैक इज अ एलिमेंट ऑफ ब्रांच दैट प्रोवाइड्स द आउटपुट टू कंपेयर विद इनपुट एंड प्रोवाइड्स द एरर। बस आपको इतना बोलना है। तो गाइज या फिर ये कह सकते हो, कई सारे आंसर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से दो। फीडबैक का काम क्या है? फीडबैक का काम है आपके आउटपुट को कंपेयर करने के लिए इनपुट के साथ लेकर आना, यानी फीडबैक का काम है आउटपुट को सेंस करके इनपुट से कंपेयर करवाना। दिस इज द वर्क ऑफ द फीडबैक। तो गाइस फीडबैक में आप लोग हमेशा बोलेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे सेंसर वर्ड याद रखना है आप लोगों को। दूसरा, हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि फीडबैक का काम है इस सेंसर के थ्रू आउटपुट को लेकर आना, इनपुट से कंपेयर करवा के एरर प्रोवाइड करवाना कि हमारे सिस्टम में कितना एरर आ रहा है और हमें इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या करना है। दैट्स ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक इन द सिस्टम? अब फीडबैक तो गाइज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर यही पूछेगा। फीडबैक तो आपने बता दिया, फीडबैक इज अ सेंसर दैट कंपेयर द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द इनपुट ऑफ द सिस्टम, दैट्स ओके, एंड प्रोवाइड्स द एरर। Next question that will ask in the question in the interview panel, that what will be the question, that ये जो feedback आप जो provide करवा रहे हो, that feedback system can be how many types? तो two types का feedback हो सकता है, positive feedback या negative feedback। तो guys हमारे पास यहाँ पर question यही है that positive feedback and negative feedback में differences क्या है? What are the applications? तो differences बताओ, इनकी applications बताओ। तो guys पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए guys। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा हमारे पॉजिटिव के बारे में। पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट विल बी द वे टू गिव द आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में आप लोगों के पास आपका ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक में आप सबको याद है कि आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा तो फॉर्मूला होगा, पॉजिटिव के लिए नीचे माइनस आएगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में आप लोगों को आई थिंक न्यूमेरिकल पोर्शन सब लोगों का क्लियर होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो नेगेटिव फीडबैक में गाइज आप लोगों का डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। गाइज मुझे बताएं, यहाँ आपका ये जो डिनोमिनेटर है इसमें बीच में माइनस है और यहाँ प्लस है। गाइज माइनस वाला वैल्यू छोटा होने की वजह से इसका ओवरऑल टी यानी इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या गेन ज़्यादा होगा, और इसका प्लस होने की वजह से डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा जिससे इसका ओवरऑल गेन कम हो जाएगा।
गाइस ऑलवेज रिमेंबर इन पॉजिटिव फीडबैक द गेन विल बी हायर, गेन आप लोगों का ज़्यादा होगा, दैट्स ऑल। एंड इन नेगेटिव फीडबैक द गेन विल बी लो, गेन कम होगा, है नहीं? गाइस गेन और स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट गेन एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जहाँ गेन ज़्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी विल बी पुअर एंड द स्टेबिलिटी विल बी पुअर, एंड जहाँ पर गेन कम होगा देन द स्टेबिलिटी विल बी हाई, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल बी हाई। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की जहाँ गेन ज़्यादा चाहिए? तो ध्यान रखना जहाँ पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन कहाँ है, पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन एग्जांपल कहाँ पर है? तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ गेन ज़्यादा चाहिए। और गाइस गेन की ज़रूरत कहाँ ज़्यादा पड़ती है? जैसे कि हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब क्या है गाइस? तो एम्पलीफायर का मतलब सब लोग जानते हैं, एम्पलीफाई करना यानी कि एम्पलीफाई करना यानी बढ़ाना यानी गेन बढ़ाना। नेक्स्ट वन हम लोग इसको ऑसिलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर। एग्जाम में कई बार पूछ लेते पॉजिटिव फीडबैक का और कोई नाम है क्या? ध्यान रखना गाइस पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं, रीजनरेटिव फीडबैक, ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। रीजनरेटिव फीडबैक आई थिंक क्लियर होगा। तो कहाँ यूज करते हैं? तो गाइस नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? तो गाइस इसकी एप्लीकेशन वहाँ होगी जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो स्टेबिलिटी हायर कहाँ चाहिए गाइस? कंट्रोल सिस्टम में चाहिए। ध्यान रखना ये जो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम, गाइस इस कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास स्टेबिलिटी हाई होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट गाइस नेगेटिव फीडबैक ही पढ़ते हैं, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक को तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं गाइस? ऑसिलेटर्स में पढ़ते हैं, एम्पलीफायर्स में पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशली ऑसिलेटर्स में पढ़ते हैं। तो आपका प्रीफर्ड आंसर भी इसमें भी ऑसिलेटर ही होगा, रिमेंबर दिस। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो गाइज ये है हमारे दोनों के डिफरेंसेस कि किसमें गेन ज्यादा, किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, किसमें गेन कम, किसमें स्टेबिलिटी कम, और इनका एप्लीकेशन यहाँ पर आप लोगों के पास है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो गाइज ये गेन और स्टेबिलिटी को समझाता हूँ आप लोगों को कि गेन और स्टेबिलिटी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपसे पूछ सकता है कि गेन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुए। जैसे ये गाइज आप लोग एक बैलून ले लें, ठीक है? अब आप उस बैलून को क्या कर रहे हो? मुंह से फुला रहे हो। बताओ बैलून बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बताओ उसका अंदर का गेन बढ़ता जा रहा है। बताओ गेन तो बढ़ता जा रहा है बट उसके फूटने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। बताओ अगर वो फूट गया तो सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। तो गाइस बताओ आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी का गेन बढ़ाते हो तो आप लोगों ने बैलून का गेन बढ़ाया, आप लोगों ने उसमें हवा भर के कैसे बढ़ाया? तो आपने जैसे जैसे उसका गेन बढ़ा रहे हो बताओ उसके अनस्टेबल होने के चांसेस क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। अगर उसका गेन बहुत कम है तो वो स्टेबल है, अगर गेन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो थोड़ी देर में अनस्टेबल हो जाएगा, दैट द बैलून विल डिस्ट्रॉय। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि गेन बढ़ाने पर सिस्टम की स्टेबिलिटी कमजोर होती चली जाती है। तो guys, जिसका गेन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम, जिसका गेन कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द कंट्रोल? ऑर्डर और टाइप के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपको सिस्टम का ऑर्डर और टाइप कैसे पता होना चाहिए? तो गाइस कंट्रोल सिस्टम में ऑर्डर और टाइप की डेफिनेशन हमारे पोल के हिसाब से दी जाती है। ओपन लूप पोल, क्लोज लूप पोल्स, इस तरह की बातें चलती है। तो मैं पहले आप लोगों को डिफाइन कर दूं गाइस। ऑर्डर तो क्या होता है? ऑर्डर होता है गाइस हमारे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, या आप यहाँ पर तो क्लोज, पहले तो मैं कॉमन डेफिनेशन दे देता हूँ फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं बताऊंगा। तो गाइस दीज आर द ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स होंगे, पोल्स का मतलब डिनोमिनेटर होता है, एवरीवन नोस। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, बस खत्म। टाइप क्या होता है? अगर आपको किसी सिस्टम का टाइप निकालना है तो योर डेफिनेशन विल बी नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाइज एट ऑरिजिन। बस इसमें ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो गाइस ऊपर वाले का नीचे वाले का डेफिनेशन सेम ही है। देखो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, बट इसमें सिर्फ वो पोल्स जो कहाँ लाई कर रहे हैं? ओरिजिन पे। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। एग्जांपल के तौर पर देखें, सपोज अवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसको हम लोग जीएसएचएस से डिनोट करते हैं, दिस इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सपोज इट इज एस प्लस वन, ये लिख देते के एस प्लस वन अपॉन, हियर इट इज, दिस इज एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस थ्री विल बी, हियर इट इज। सबसे पहले इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा? तो गाइज आप लोगों का ओपन लूप सिस्टम यहाँ पर है। ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल पोल डिनोमिनेटर देखो टोटल कितने हैं? एस की पावर टू यानी दो, तीन और ये चार। एस की पावर वन वन, एस की पावर वन वन, दो तीन चार, तो टोटल फोर। फोर इज योर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? टाइप पता करना है तो आप इन ओपन लूप पोल में से वो पोल बताओ जो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। तो ये तो माइनस टू पे लाई करेगा, माइनस थ्री पर।
यहाँ एस स्क्वायर के दो पोल गाइज ओरिजिन पे लाई करेंगे, बिकॉज एस बराबर 0 पर आएगा तो टू पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, तो गाइज योर टाइप ऑफ द सिस्टम विल बी द टू। मेरे ख्याल से टाइप एंड ऑर्डर क्लियर होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो गाइज टाइम रेस्पॉन्स बताना, ये वो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है गाइज जो आप लोगों से कई सारे पीएसयू में पूछे गए क्वेश्चन है ना। आप लोगों से पूछे हुए क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर आप लोगों से के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इन्हें थोड़ा सा सीरियसली लें। व्हाट इज द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, तो टाइम रेस्पॉन्स पर बात चल रही है। तो गाइज किसी भी कंट्रोल सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स जो होता है गाइज वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग कहेंगे टाइम रेस्पॉन्स डिवाइडेड इनटू, अब आपको अपनी लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है ना। वहां पर टाइम रेस्पॉन्स, क्योंकि मैं फिक्स लैंग्वेज बताऊंगा आप उसको रटने की कोशिश करोगे, वहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा अगर आप लोगों को चीजें याद नहीं आई तो। ऑलवेज रिमेंबर टाइम रेस्पॉन्स इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिएंट, फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिएंट एंड द सेकंड पार्ट इज स्टेडी स्टेट गाइस, स्टेडी स्टेट। तो गाइस आप लोग बोलेंगे द टाइम रेस्पॉन्स इज व्हाट, तो आप लोग कहेंगे टाइम रेस्पॉन्स इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स दैट इज ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। एंड व्हाट आर द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो इसके लिए आप चाहें तो एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं, जैसे कि आप फैन का एग्जांपल दे दें, सीलिंग फैन का। आप कहेंगे कि सर अभी फिलहाल मेरा सीलिंग फैन ऑफ है, जैसे ही मैं उसको इनपुट देता हूँ, क्या देता हूँ, इनपुट यानी स्विच ऑन करता हूँ, मेरा फैन स्पीड पकड़ने लगेगा, घूमेगा 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 घूमेगा। बताओ अपना फैन जो है, सीलिंग फैन जो है, वो अपनी स्पीड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इट इज, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड हमारे टाइम के साथ वेरी कर रही है। वेन एवर योर आउटपुट विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज ट्रांजिएंट। इट मींस आपका फैन इस वक्त ट्रांजिएंट कंडीशन है। गाइस घूमते घूमते थोड़ी देर बाद वो फाइनली एक कांस्टेंट स्पीड पर चला जाएगा, जो कि उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। और जब वो अपनी फिक्स स्पीड पर चला जाएगा, जब आपकी स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, तो इसका मतलब वो फाइनली स्टडी स्टेट में जा चुका है। तो गाइस बताओ सबसे पहले हमारा कोई भी सिस्टम कौन सी कंडीशन में रन करता है, ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट में जाने के लिए आपको सिस्टम को क्या देना पड़ता है गाइस, तो मैंने इनपुट दिया है। तो गाइस ध्यान रखना ये ट्रांजिएंट किसकी वजह से होता है। तो आप ट्रांजिएंट के लिए इनपुट और फाइनली बताओ कहां चला गया, स्टडी स्टेट। तो आप स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट के बारे में देखो क्या कहोगे, लिसन वेरी केयरफुली, है ना। सबसे पहले तो ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट अगर आप लोगों को डिफाइन करने को बोले कि ट्रांजिएंट आता क्यों है, ये सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ट्रांजिएंट के आने का सबसे मेन कारण होता है सिस्टम के अंदर पहले से स्टोर्ड इनिशियल एनर्जी। इनिशियल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी। सिस्टम में कुछ ना कुछ इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी होगी, उसकी वजह से ट्रांजिएंट वाला हिस्सा आता है, स्टोर्ड एनर्जी। और स्टडी स्टेट किसकी वजह से आता है, तो गाइस इट इज ड्यू टू इनपुट। अगर आप सिस्टम को इनपुट दे रहे हो तो उसकी वजह से, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो हमारा फाइनली सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट में चला गया। तो गाइस बताओ हमने इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस इनपुट की वजह से आता है स्टडी स्टेट, और इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी की वजह से आता है ट्रांजिएंट, ठीक है। अब मान लो आप लोगों को ट्रांजिएंट का कोई दूसरा नाम पूछे कि बताओ ट्रांजिएंट को आप लोग कौन सा रेस्पॉन्स कहते हैं, तो ध्यान रखना गाइस इसका एक और नाम होता है, इसे नेचुरल, नेचुरल रेस्पॉन्स कहते हैं, नेचुरल रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स। एंड व्हाट अबाउट द स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट को गाइस ध्यान रखें हम लोग फोर्स्ड रेस्पॉन्स कहते हैं, नॉन एज फोर्स्ड रेस्पॉन्स, फोर्स्ड रेस्पॉन्स, ठीक है। और अगर आप लोगों से इसके नाम पूछे तो आप लोग इसे ध्यान रखें कि हम लोग इसे, बताओ ट्रांजिएंट लाने के लिए स्टडी स्टेट को जीरो करना पड़ेगा। टाइम रेस्पॉन्स में ट्रांजिएंट आने के लिए आप लोगों को स्टडी स्टेट को जीरो करना पड़ेगा। स्टडी स्टेट इनपुट पर डिपेंड करता है, तो आप इनपुट को जीरो कर दो, तो आप इसे जीरो इनपुट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। ये वो नाम है जो आप वहां पर ले सकते हैं, और इसके लिए आप अपने फैन का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। और अगर इसे बनाना हो तो गाइस बताओ स्टडी स्टेट लाना हो तो ट्रांजिएंट को जीरो कर दो, ताकि टाइम रिस्पांस में सिर्फ स्टडी स्टेट बचेगा। तो ट्रांजिएंट को जीरो करने के लिए इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट को जीरो करते हैं, इसलिए इसे जीरो स्टेट रेस्पॉन्स कहते हैं, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। गाइस ये हमारे ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट वाले पार्ट हैं। तो गाइस ट्रांजिएंट क्या होता है, तो गाइस ध्यान रखना कोई भी सिस्टम सबसे पहले ट्रांजिएंट में ही जाता है, और फिर उसके बाद फाइनली स्टडी स्टेट। मान लो घूमता हुआ फैन है, फुल स्पीड पर घूम रहा है, ठीक है, अभी वो स्टडी स्टेट में है। अब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, बताओ ऑफ करते ही उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। बताओ उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी पहले तो हो जाएगा ट्रांजिएंट में। थोड़ी देर बाद गए उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो, यानी वो फाइनली की स्पीड जीरो हो गई, यानी अब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, तो फाइनली किस में चला जाएगा, स्टडी स्टेट। आप कोई भी स्विचिंग कंडीशन करते हो ऑन या ऑफ वाली, यानी किसी को भी इनपुट देते हो या उससे इनपुट छीन लेते हो, तो ध्यान रखना सबसे पहले वो ट्रांजिएंट में जाएगा, और फिर फाइनली वो किस में जाएगा, स्टडी स्टेट में जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। द नेक्स्ट वन,
व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रोलर इन अ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोलर का मेन रोल क्या होता है? गाइस कंट्रोलर का काम होता है, ये जो हमने अभी दो परफॉर्मेंस पढ़ी ना, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट, दो हमने रेस्पॉन्स पढ़े हैं। गाइस हमारी ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है कंट्रोलर। तो आपका कंट्रोलर का जब भी कभी आप लोगों से पूछे तो आप कंट्रोलर की डेफिनेशन क्या देंगे? तो आप लोगों की कंट्रोलर की डेफिनेशन होगी गाइस, कंट्रोलर का काम क्या होता है? इट इज यूज टू इम्प्रूव, इज यूज टू ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस, ट्रांजिएंट एंड लिख देते एंड स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस। तो आपकी ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के काम आता है कौन? हमारा कंट्रोलर। अब बात आती है कि आपकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? तो गाइस ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस से हमारा मतलब, गाइस हमारा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस से मतलब क्या है? तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है, ट्रांजिएंट टाइम में गाइस हम लोग कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, शायद आप लोगों ने इसको न्यूमेरिकली पढ़ा होगा, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम, पीक ओवरशूट। गाइस ध्यान रखना इन सब की वैल्यू अच्छे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के लिए कम से कम होनी चाहिए। ये जितने कम होंगे ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस उतनी बेहतर है। और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस का मतलब होता है गाइस, स्टडी स्टेट में हम लोग सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं गाइस स्टडी स्टेट एरर। गाइस ध्यान रखना स्टडी स्टेट एरर भी कम होनी चाहिए। तो गाइस ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस में हम लोग इन चीजों को इंप्रूव करते हैं और स्टडी स्टेट में इसको। अब आपसे पूछ सकता है कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं? तो कंट्रोलर में आप लोग बेसिकली गाइस तीन टाइप्स बताएंगे। पहला है आपका प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों का डेरिवेटिव कंट्रोलर, डेरिवेटिव। एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रल। अब गाइस बाकी और भी कंट्रोलर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए गाइस सबसे बेस्ट कंट्रोलर हमारा प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव को मिलाकर बनाया गया प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, या जिसे हम लोग पीडी कंट्रोलर कह देते हैं, ये बेस्ट होता है। कौन सी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए? ट्रांजिएंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कंट्रोलर। द नेक्स्ट वन स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस के लिए गाइस सबसे बेस्ट कौन सा है? तो गाइस इसके लिए स्टडी स्टेट एरर को जीरो बनाने का काम हमारा पीआई कंट्रोलर करता है गाइस। पीआई कंट्रोलर इसके लिए बेस्ट है। तो गाइस पीडी और पीआई को भी आप अगर आप आपस में मिला दो यानी पीआईडी बना दो, तो गाइस पीआईडी एक ऐसा कंट्रोलर है जो आपकी दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगा, बहुत ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। अगर आप तीनों कंट्रोलर को मिला दो तो आपके बेसिक जो है प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, तीनों को मिला दो तो गाइस बहुत ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस आप लोगों का। हियर इट इज, तो ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कंट्रोलर के बारे में। तो गाइस कंट्रोलर का काम क्या है? आपके टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया। अब आपसे पूछ सकता है ट्रांजिएंट में कौन कौन सी परफॉर्मेंस, तो आप इनके नाम ले सकते हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम। इन सबकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी। राइज टाइम जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो राइज टाइम कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जब हमारा आउटपुट अपनी स्टडी स्टेट वैल्यू को फर्स्ट टाइम अचीव करता है, तो उसे राइज टाइम। पीक टाइम कौन सा? जब हमारा आउटपुट अपनी पीक वैल्यू को अचीव करता है। पीक का मतलब मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी, एंड ऑल दैट सारे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट। मैं आपसे डिले टाइम की डेफिनेशन गाइस कई बार पूछी गई। डिले टाइम वो टाइम होता है जब आपका आउटपुट अपनी स्टडी स्टेट वैल्यू का 50% वैल्यू या हाफ वैल्यू अचीव करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिले टाइम। ठीक, क्लियर होगा? नेक्स्ट, डिफरेंशिएट कंडीशनल स्टेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। काफी बार देखा गया है कि आप लोगों के कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत सारे नाम है। कौन कौन सी? बीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, कंडीशनल स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। इतने सारे नाम है कि आप लोगों से अगर सिर्फ ये पूछ दिया गया है, ये बोल दिया जाए कि जितनी भी स्टेबिलिटी इनको डिफरेंशिएट करो, क्या क्या डिफरेंसेस इनमें, तो वो भी आप लोग नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए ध्यान से सुनना गाइस। आप लोगों का मैं सबसे पहले तो कंडीशनल स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में डिफरेंस बताना चाहूंगा। कंडीशनल स्टेबिलिटी गाइस हमारे दो सिस्टम बताते हैं। कौन कौन सा? हमारा राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया एक तो कंडीशनल स्टेबिलिटी पर बात करता है और एक रूट लोकस करता है। गाइस सबसे पहले तो कंडीशनल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, या पहले तो इसके मेथड, कौन कौन से मेथड में हम लोग इसे यूज करते हैं? तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से जो स्टेबिलिटी निकलेगी वो भी आपकी कंडीशनल, और सेकंड वन आप लोगों का रूट लोकस। गाइस इन दो मेथड से आप लोगों की कंडीशनल स्टेबिलिटी निकलती है, या एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी इन्हीं से निकलती है। ठीक है, अब दोनों स्टेबिलिटी में मेन डिफरेंस क्या है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन दे दूं। तो कंडीशनल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में आप लोग क्या कहेंगे? अ सिस्टम इज सेड टू बी, तो आप ये कहेंगे वहां, है ना, जब डेफिनेशन पूछेंगे आप लोग कहेंगे अ सिस्टम इज सेड टू बी रिलेटिव स्टेबल, सॉरी, कंडीशनल स्टेबल
said to be conditional stable if its stability depends upon डिजाइन पैरामीटर के। अगर इसकी स्टेबिलिटी गाइस आप लोगों के डिजाइन पैरामीटर है आप लोगों का एक के इस पर निर्भर करती है, इस के पर निर्भर करती है। अगर आपकी स्टेबिलिटी के, आप लोगों ने नाम सुना होगा गाइस, इसको आप लोग स्केल फैक्टर कहते हो, पोल जीरो फॉर्म में अगर आप लोग इसे कहें तो, और अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन है तो इसे आप लोग डीसी गेन कहते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोग पोल जीरो फॉर्म वाला यानी स्केल फैक्टर यहाँ पे लेके चलते हैं। तो गाइस आपके इस स्केल फैक्टर के की वैल्यू, जिसे आप डिजाइन पैरामीटर के कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी वेरी कर रही है तो आप इसे कंडीशनल स्टेबिलिटी कहेंगे। तो सादा भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग के की अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग स्टेबिलिटी आ रही है तो कंडीशनल स्टेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोल दे कि के की 0 से लेकर ए कांस्टेंट तक की वैल्यू के लिए सिस्टम आपका स्टेबल है। के बराबर ए पर आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल। एंड के इज इक्वल टू, या के की रेंज ए से लेके इंफिनिटी तक आपका सिस्टम जो है गाइज वो अनस्टेबल है। गाइज मुझे बताओ, के की अलग अलग रेंज आप लोगों को जीरो से लेके इन्फानाइट तक वेरी करवाना है, के को ध्यान रखना। गाइज के की रेंज जीरो से लेके इन्फानाइट तक देखो, अलग अलग रेंज पर आपके स्टेबिलिटी का स्टेटस अलग अलग है। तो गाइज के की अलग अलग रेंज पर सिस्टम की स्टेबिलिटी का अलग अलग अगर हमारा आंसर्स आ रहे हैं तो इसे कंडीशनल स्टेबिलिटी कहेंगे। इसी के रेस्पेक्ट में इसी का उल्टा जस्ट अगर आप एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कह दें, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है, तो गाइज आप सेम डेफिनेशन देंगे, बस डेफिनेशन में क्या चेंज होगा कि अ सिस्टम इज सेड टू बी एब्सोल्यूट स्टेबल इफ इट्स स्टेबिलिटी, इफ इट इज स्टेबल, आप ये कहेंगे इफ इट इज स्टेबल फॉर ऑल पैरामीटर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द डिजाइन पैरामीटर के। यानी गाइज अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो सिंपली अगर हमारा जीरो से लेके के की इन्फानाइट वैल्यू तक टोटल कोई रेंज वेंज पूरा बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हुआ, कंप्लीट रेंज के लिए अगर सिस्टम गाइज आपका स्टेबल है तो गाइज इसे हम लोग सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कंडीशनल स्टेबिलिटी का वो केस है जिसमें गाइज के की वैल्यू आप लोगों की जीरो से लेके इनफाइनाइट तक यानी के की कंप्लीट रेंज के लिए सिस्टम आपका कंप्लीटली स्टेबल है। तो गाइज इसे हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं। मेरे ख्याल से कंडीशनल और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से और आप वहां अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया एंड रूट लोकस स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है गाइस कि जब स्टेबिलिटी के लिए राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया था तो फिर रूट लोकस पढ़ने की क्या जरूरत। तो गाइस राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया और आपके रूट लोकस में मेन डिफरेंस क्या है वो ध्यान से सुनो। गाइस जब भी कभी हमारा सिस्टम स्टेबल है तब तक तो कोई इशू नहीं है। अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो हमको याद है हमारे सारे क्लोज लूप पोल एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में है। ठीक है, आपको ये आंसर देना है वहां पर अगर आपसे इनका दोनों का डिफरेंस पूछे कि सर इफ सिस्टम इज स्टेबल, तो मैं यहां लिख देता हूं इफ सिस्टम स्टेबल देन all closed loop poles in left half of S plane। सारे के सारे गाइस क्लोज लूप पोल आपके एस प्लेन के लेफ्ट हाफ। एंड अगर आपका सिस्टम आपको याद है इफ सिस्टम अनस्टेबल, इफ सिस्टम अनस्टेबल तो आप सबको याद है देन सम क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कुछ पोल्स आपके राइट हाफ में गए हैं। ठीक है, तो गाइज ये बात तो हम लोगों को राउथ ऑर्बिट से ही पता चल जाती है, रूट लोकस से भी, दोनों बातें। अब गाइज दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो गाइज दोनों में डिफरेंस क्या है राउथ हर्विट्स में और रूट लोकस में। गाइज राउथ हर्विट्स ये बताता है कि कितने पोल राइट हाफ में गए हैं। सबसे पहले राइट हाफ के पोल बताता है, फिर इमेजिनरी एक्सिस के पोल बताता है, फिर लेफ्ट हाफ के पोल बताएगा। तो गाइज नंबर ऑफ राइट हाफ पोल्स, नंबर ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पोल्स और नंबर ऑफ लेफ्ट हाफ पोल बताता है। गाइज नंबर बताता है, बट रूट लोकस नंबर तो बताएगा ही सही। नंबर बताए ना बताए, सबसे मेन चीज जो ये बताता है वो बताता है कि उन क्लोज लूप पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन। गाइज ये सिर्फ ये बताता है लेफ्ट में कितने गए, राइट में कितने गए, इमेजिनरी एक्सिस पे कितने गए, कितने गए, कहाँ गए, ये नहीं बताता, ये लोकेशन नहीं बताता। गाइज रूट लोकस का मेन एडवांटेज क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें ग्राफ बनता है, रूट लोकस बनता है, प्लॉट बनेगा पूरा,
गाइज ये लोकेशन ऑफ पोल्स प्रोवाइड करवाता है, ये लोकेशन ऑफ पोल्स प्रोवाइड करवाता है, लोकेशन ऑफ पोल्स देता है। और अगर मैं जस्ट उल्टा इसके बारे में कहूँ तो ये नंबर ऑफ पोल्स देता है बस। ये सबसे मेन डिफरेंस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पोल। तो गाइज दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये हमारे कितने पोल लेफ्ट में गए, कितने राइट में, कितने जीरो में गए, ये नंबर प्रोवाइड करवाएगा, और ये नंबर के साथ साथ उनकी लोकेशन प्रोवाइड करवाएगा सबसे। तो गाइज ये नंबर प्रोवाइड करवाता है और ये लोकेशन, ये मेन डिफरेंस है राउथ हर्विट्ज़ और रूल लॉ। दोनों निकालने की स्टेबिलिटी काम आते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज द मेन डिफरेंस। और आई थिंक ये स्टेबिलिटी वाला भी आप लोगों को क्लियर होगा कि स्टेबल के लिए तो आपके पोल्स लेफ्ट हाफ में होंगे और अनस्टेबल के लिए आपके पोल्स कुछ पोल राइट हाफ में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे गाइस, द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अब गाइस रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब होता है गाइस किसी के रेस्पेक्ट में जब हम लोग बोलते हैं तो इसे रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी हमने दो सिस्टम को कंपेयर करवाया, एक ज्यादा स्टेबल एक कम स्टेबल है, इसे रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो गाइस इस रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन द रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। तो गाइस रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब आप कहेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी गिवन बाय, रिलेटिव स्टेबिलिटी तो लिखा हुआ है, रिलेटिव स्टेबिलिटी गिवन बाय गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, सिर्फ आपका आंसर ये हो। रिलेटिव स्टेबिलिटी किससे देते हैं गाइस, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज गेन मार्जिन एंड व्हाट इज फेज मार्जिन, गेन मार्जिन फेज मार्जिन ये होते क्या है मार्जिन, देन व्हाट विल यू डिफाइन। तो पहली बात तो रिलेटिव स्टेबिलिटी आप कहोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करते हैं। तो गाइस ये गेन मार्जिन फेज मार्जिन हम बोर्डे प्लॉट और नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से निकालते हैं, बोर्डे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से, बोर्डे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन चालू हो गया, अभी तक के कौन सा डोमेन चल रहा था, टाइम डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में गाइस आपके गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकाल के हम रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। कैसे, तो आप कहेंगे यहाँ पर तीन कंडीशन है, दैट इफ गेन मार्जिन, शॉर्ट में गेन मार्जिन को जीएम कहते हैं, पॉजिटिव एंड फेज मार्जिन इज आल्सो पॉजिटिव, देन आप कहेंगे सिस्टम विल बी रिलेटिव स्टेबल। स्टेबल का मतलब वही रिलेटिव स्टेबिलिटी। सेकंड केस आप लोगों से पूछा जाता है, तो गाइस सेकंड केस आप बताएंगे, जैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी में डिफाइन कर रहे हो, रिलेटिव स्टेबिलिटी इज गिवन बाय द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम। इफ द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर द पॉजिटिव देन द सिस्टम विल बी स्टेबल, इफ द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन विल बी नेगेटिव देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। पॉजिटिव और नेगेटिव बोलोगे गाइस, ग्रेटर देन लेस देन जीरो वाले पॉइंट्स। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपका पॉजिटिव और लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। एंड द थर्ड वन, इफ इफ if if the gain margin and phase margin are equal to zero, the gain margin and phase margin are equal to zero, then the system will be known as the marginally stable system, marginally, ठीक है, marginally stable will be। अब आप लोगों से यहाँ आप जब इसका पूरा डेफिनेशन ये वाला दोगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइंड बाय द गेन मार्जिन फेज मार्जिन, और ये तीनों कंडीशन बोल चुके होंगे, तो आपसे पूछेगा ये गेन मार्जिन फेज मार्जिन होता क्या है मेरे भाई। तो गाइस इसी से रिलेटेड मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, व्हाट इज द गेन मार्जिन। तो गाइस गेन मार्जिन का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन तो आप ये दोगे, गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज इन ओपन लूप गेन नीडेड टू मेक अ क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल। ओह ये क्या है, इसका एक और डेफिनेशन है गाइस, गेन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन 0 dB एंड गेन एट द फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों को डिफाइन करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैं आप लोगों को अभी एक बैलून वाला एग्जांपल दे रहा था, आप लोगों को याद है, बैलून वाले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखो गाइस गेन मार्जिन क्या है, एक मार्जिन है जो हम हमारे किसी भी सिस्टम में पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक बैलून है हमारे पास, बैलून को मैंने हुक दे दे के उसका गेन बढ़ाया, और गाइस उसके अंदर मैंने हवा का प्रेशर कर दिया लगभग लगभग, मान लो एक कांस्टेंट 2 ले लेते हैं, कि हमारा फिलहाल जो गेन है बैलून का वो है 2, ठीक है, 2 psi वगैरह जो भी आप प्रेशर लेंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि आप इस सिस्टम का गेन बढ़ाकर मैक्सिमम 6 कर सकते हो, इसके बाद ये बैलून फूट जाएगा। तो गाइस बताओ इस गेन 2 में, जो कि अभी प्रेजेंट में हमारा गेन है, इसमें मैं और कितना गेन ऐड करूं सिस्टम को अनस्टेबल करने के लिए, यानी कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, के लिए मैं और कितना अमाउंट ऐड करूं, अमाउंट ऑफ चेंज इन ओपन लूप गेन। आपका ओपन लूप गेन में मैं कितना और अमाउंट चेंज करूं कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। तो गाइस बताओ 2 में मैं और कितना मार्जिन ले सकता हूं, तो गाइस यहां से मार्जिन निकलेगा गाइस, अभी 2 के बाद 6 तक जाने में हमारे पास 4 का मार्जिन और है, इसी को गाइस गेन मार्जिन कहते हैं। समझ में आया। मेरे पहले बैलून को 2-3 बार फूंक देके मीडियम साइज फुलाया, एकदम छोटा सा, अब मेरे से ये बोला गया भाई आप इसका गेन मार्जिन निकालो, अब मैं इसमें गेन बढ़ाऊंगा, और तब तक बढ़ाऊंगा जब तक बैलून फूट ना जाए। जिस प्रेशर पे बैलून फूट जाएगा, जैसे 6 वाले प्रेशर पे फूट गया, तो इनिशियल गेन था 2, और जिस पर फूटा वो फाइनल गेन था 6।
तो गाइस इनिशियल गेन और फाइनल गेन के बीच का डिफरेंस ही हमारा मार्जिन कहलाता है, इसी को गेन मार्जिन कहते हैं। गाइस मेरे ख्याल से पहली वाली डेफिनेशन क्लियर होगी। तो आप लोगों को तो बैलून वाले एग्जांपल में सीधे नहीं जाना ना, पहले टेक्निकल लैंग्वेज में अपना आंसर देना। तो आपका टेक्निकल लैंग्वेज में मेरे ख्याल से आंसर क्लियर होगा कि ओपन लूप गेन में आप कितना अमाउंट ऑफ गेन चेंज करोगे कि क्लोज लूप सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाए। तो बैलून वाला एग्जांपल से शायद आप लोगों को ये थ्योरी याद रहेगी। नेक्स्ट है गाइस ये वाली डेफिनेशन, गेन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डीबी एंड गेन एट फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो गाइस आप लोगों को शायद गेन मार्जिन का फॉर्मूला याद हो। गाइस गेन मार्जिन का फॉर्मूला डीबी में क्या होता है, डीबी का मतलब डेसिबल, एक्चुअल में तो होता है 1 अपॉन गेन, ये फॉर्मूला होता है। अब गाइज अगर मैं इस गेन मार्जिन के फॉर्मूला को इन डीबी बात करूं कि डीबी में क्या फॉर्मूला होता है, गाइज इसके लिए आपको इसके आगे 20 लॉग लगाना पड़ेगा। गाइज जैसे ही आप इसके आगे 20 लॉग लगाओगे तो लॉग 1 की वैल्यू तो गाइज 0 डीबी होती है, और डिवाइड में है तो गाइज माइनस हो जाएगा। लॉग में आपको याद है जो डिवाइड में होता है वो ऊपर आके माइनस में हो जाता है। तो गाइज माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका गेन इन डीबी, के भी आगे 20 लॉग लगेगा तो गेन इन डीबी। और गाइज ध्यान रखना है गेन इन डीबी हम फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो गाइज ये हमारा डीबी में आंसर है। डीबी में फॉर्मूला होता है गेन इन डीबी का, और ये बिना डीबी के गेन मार्जिन का फॉर्मूला है। ये गेन मार्जिन इन डीबी और ऊपर वाला गेन मार्जिन विदाउट डीबी। अब गाइज आप लोगों से देखो मैंने ये वाली डेफिनेशन, नीचे वाली डीबी वाली, गेन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डीबी, देखो डिफरेंस है माइनस है 0 डीबी, और गेन एट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। देखो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी पर आपका गेन है। आज से पूछ सकता है ये फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए कहेंगे सर ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारा फेज एंगल, माइनस 180, जो हमारा फेज एंगल माइनस 180 डिग्री रहता है वही हमारी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारा गेन 1 हो जाता है, या डीबी में गेन हमारा 0 हो जाता है। ये सब तो आप लोगों ने फॉर्मुला में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो गैस गेन मार्जिन का स्पेसिफिक आपका टेक्निकल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है, जिसको मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन को तो गाइस इसके थ्रू समझाया है, बैलून वाले एग्जांपल के थ्रू, और नीचे वाली डेफिनेशन को गाइस मैंने यहाँ से क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द रेजोनेंट पीक। गाइस जैसे कि आप लोग टाइम रेस्पॉन्स में एक फैक्टर पढ़ते हो पीक ओवरशूट, याद है आप लोगों को पीक ओवरशूट कैसे बनाते हैं आप लोग। पीक ओवरशूट आप लोग ऐसे बनाते हैं, सपोज ये डिजायर्ड आउटपुट है, आप लोग जैसे ऐसे जा रहा है हम, ये रेस्पॉन्स आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। गाइस ये हमारा पीक ओवरशूट होता था, कितना ऊपर जा रहा है। गाइस ये होता था हमारे पास क्या, गाइस दिस इज अवर पीक ओवरशूट ना, अवर एमपी पीक ओवरशूट। गाइस सेम हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये तो टाइम डोमेन में था। गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी जब टाइम के साथ नहीं फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हैं, गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेजोनेंट पीक हमारा जीटा के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। तो जैसे ये जीटा पे डिपेंड करता है, एमपी भी, एमपी का फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस का n पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा। गाइस हम लोग इसमें कहते थे कि जीटा जितना ज्यादा होगा एमपी उतना कम होगा, और ये उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि पीक ओवरशूट जितना कम होता है गाइस सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल। यहाँ पर भी यही है गाइस, जब हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एमआर का फॉर्मूला, रेजोनेंट पीक को गाइस एमआर से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो मैं एमआर और जीटा के बीच में ग्राफ बना देता हूं। ध्यान रखना गाइस रेजोनेंट पीक वो पीक होता है, ये इसका ग्राफ लगभग कुछ इस तरह से बनता है। ये आप लोगों के पास एमआर का फॉर्मूला होता है 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। गाइस रेजोनेंट पीक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिलता है, और ध्यान रखें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ जीटा की वैल्यू 0.707 तक ही जाती है, यानी 1/√2। इसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जीटा की वैल्यू अंडर डैम में 0 से 0.707 या 1/√2 तक हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले आप जीटा बराबर 0 पुट करोगे तो गाइस ये इन्फानाइट से शुरू होगा और ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। गाइस बताओ हमारा एमआर और जीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग रेजोनेंट पीक में भी क्या कहते हैं, तो रेजोनेंट पीक के बारे में आप क्या बोलोगे। रेजोनेंट पीक इज एनालोगस टू द पीक ओवरशूट, it is inversely proportional to zeta. You always want that resonant peak or peak overshoot should be less, for that zeta should be high. रेजोनेंट पीक कम क्यों करना चाहते हैं, ताकि सिस्टम क्या बना रहे, स्टेबल बना रहे। क्या बना रहे, स्टेबल बना रहे। तो गाइज आप लोगों से कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द रेजोनेंट पीक, मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछे रेजोनेंट पीक क्या होता है, तो आप कहेंगे इट डिफाइंस द रिलेटिव स्टेबिलिटी इसलिए गाइस क्योंकि रेजोनेंट पीक आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है गाइस। तो गाइस आप लोग ये कहेंगे रेजोनेंट पीक क्या होता है, इट इज फॉर द इट इज फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स द
रिलेटिव स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है सिस्टम को। कैसे प्रोवाइड करवाता है? बस आप लोगों को एक लाइन में जवाब देना है, मैं लिख देता हूँ एज इट इज। देखो आप लोगों को क्या बोलना है रेजोनेंट पीक के बारे में, रेजोनेंट पीक। आप लोगों को देखो आंसर देने का तरीका बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आपको एक लाइन में आंसर देना है ना। पहले मैं सबकी डेफिनेशन इसीलिए लिखूंगा। रेजोनेंट पीक क्या? इट डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ, डिफाइंस रिलेटिव स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डोमेन चल रहा है इसलिए। इट डिफाइंस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। आप लोगों को बस ये बोल, अब आपसे पूछे भाई कि रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेगा भाई, ये तो बताओ। देन आप लोगों का आंसर होगा दैट हाउ। अगर आपसे पूछ ले हाउ, कैसे, कैसे करेगा ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिफाइन, देन आप लोग क्या आंसर देंगे? सर हमारा जो रेजोनेंट पीक होता है वो एक्चुअल में एनालोगस टू, एनालोगस टू पीक ओवरशूट। आई थिंक नाम याद होगा, रेजोनेंट पीक है और ये पीक ओवरशूट है। रेजोनेंट पीक है, पीक ओवरशूट। रेजोनेंट पीक एनालोगस टू द पीक ओवरशूट दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग रेशो गाइस। इस पर डिपेंड करते हैं गाइस ये दोनों पैरामीटर, डैम्पिंग रेशो, दैट डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग। डैम्पिंग रेशो का मतलब वही आपका जी। आप लोग कहेंगे दैट एम आर हो चाहे एमपी हो, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये टाइम डोमेन में, दोनों का वैल्यू आप लोगों का कम करने के लिए आप लोगों को जीटा की वैल्यू बढ़ानी होगी, और थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर एम आर कम होगा, जिससे हमारा सिस्टम गाइज स्टेबल बना रहेगा, यानी स्टेबिलिटी। तो गाइज आप लोग हमेशा हाई डैम्पिंग रेशो चाहते हैं। हाई डैम्पिंग रेशो का मतलब 0.707 के आसपास, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को मैंने पिछले ग्राफ में बताई, जीटा की वैल्यू 0.707 से ऊपर नहीं जाएगी रेजोनेंट पीक को डिफाइन करने की। एंड इफ गाइज आप लोगों का इसी वजह से जीटा घट जाता है तो फिर आपका एमआर बढ़ जाएगा, और गाइज एमआर बढ़ने का मतलब है फिर आप लोगों का स्टेबिलिटी का इशू है। सर ये एमआर मतलब ये जीटा जो है ये, या ये जो एमआर है इसके कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये क्या है सर? देखो गाइज आप इसके लिए पीक ओवरशूट का एक एग्जांपल देख सकते हो, या रेजोनेंट पीक का। आप लोगों ने झूला देखा होगा, वो रस्सी वाला जिस पर आप ऐसे बैठ जाते हो। गाइज बैठने के बाद आपने अपने दोस्त को बोला है झूला देना, ने आप लोगों को गाइज आप लोगों को झूला दिया, यानी वो आपको पीछे लेके गया और फिर ऐसे धक्का मारा। जैसे मारा तो गाइज आपने नाव वाला झूला भी झूला होगा। तो गाइज मान लो आप लोग उस रस्सी में बैठे हो, आप लोग ऐसे गए फिर ऐसे आए, देखना, ऐसे गए ऐसे गए, फिर थोड़ा और ऊपर गए फिर ऐसे आए। गाइज बताओ आप जितना ऊपर जा रहे हो, थोड़ी देर बाद अगर आप ज्यादा ही ऊपर चले गए तो गाइज वापस अपने पाथ को रिपीट नहीं करोगे, ज्यादा ही ऊपर चले गए तो ऊपर से ऐसे घूम के आ जाओगे। गाइज अगर आप ऐसे करके ऐसे आए तब तो आप भी आओगे, झूला भी आएगा, बट अगर आप ऐसे आए तो गाइज ना, तो झूला आएगा बट बंदा नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितना ऊपर जाओगे यानी जितना रेजोनेंट पीक पकड़ोगे, वापस लौट के आने के चांसेस उतने ही कम है, यानी सिस्टम के अनस्टेबल होने के चांसेस उतने ही कम है। और आप जितना कम पीक लोगे वापस वापस लौट कर आ जाओगे, यानी सिस्टम स्टेबल बना रहेगा। तो ध्यान रखना, आप जितना पीक पकड़ोगे, ये एग्जांपल्स आप दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और इंटरव्यू में मजा भी आएगा। तो आप ये देख के सकते हो कि सर वो नाव वाला झूला होता है सर, उसके अंदर अगर हम लोग ज्यादा ऊपर चले गए तो अगर वो घूमकर इधर से आया तो सर झूला आएगा बट बंदा नहीं आएगा, समझ रहे हो? हाँ, इस तरह से आप हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। कभी कभी बीच में जब आप एक एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। तो आप इस तरह के एग्जांपल दे सकते हैं कि सर ज्यादा पीक होगा तो वापस सिस्टम के स्टेबल पोजीशन में आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन गाइज मेरी तरफ से, कंट्रोल सिस्टम में जैसे मैंने आपको कंट्रोलर समझाया, वैसे कंपनसेटर भी आप लोगों के पास एक टॉपिक है गाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनसेटर। तो गाइज आप लोग कंट्रोलर वाली ही सारी डेफिनेशन इसमें बोलोगे कि ये भी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ध्यान रखना, इज सेम एज, वहां सेम एज नहीं बोलना है। वो जो मैंने आपको आंसर लिखवा रखे हैं ना पहले कंट्रोलर के, वही आंसर यहाँ लिखना है ना, सेम एज कंट्रोलर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। बस ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है और वो टाइम डोमेन में होता था। तो कंट्रोलर टाइम डोमेन में ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपकी दोनों परफॉर्मेंस, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। गाइस ध्यान रखना, ये ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम जो इसमें करता है गाइस, वो लीड कंपनसेटर करता है, और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम गाइस करता है लैग कंपनसेटर। आप लोगों से पूछ सकते हैं इनको लैग और लीड क्यों बोलते हैं? कंपनसेटर दो टाइप के होते हैं, लैग और लीड। गाइस लीड का मतलब होता है कि इसका जब हम फेज एंगल निकालते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव एंगल का मतलब लीड एंगल होता है गाइस। और लैग कंपनसेटर में गाइस हमारा एंगल ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग लैग कंपन
ठीक है? फिर इसके बारे में आप लोगों से और अंदर की चीज़ें पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब स्टडी किया हुआ है कि लैग और लीड में क्या होती है चीज़ें, क्या नहीं, ऑल दैट। ठीक है गाइस, तो ये मेरी तरफ से गाइस आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट 12 क्वेश्चंस थे जिनके बेसिस पर आप अपने कंट्रोल सिस्टम को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताकर और इसके लिए आप इसको इंटरव्यू में प्रेफर कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। ठीक है गाइस? तो जैसा आप सबको पता है कि समय कम है और इंटरव्यू आप लोगों का आज के बाद लगभग 3 दिन बाद यानी 16 तारीख को आप लोगों का इंटरव्यू है। तो आप लोगों को सबको मैं अपने एमआरपीएल यानी कि आपका मैंगलोर वाला जो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड उसके इंटरव्यू के लिए गाइस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से इंटरव्यू देकर आना और गाइस अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो इंजीनियर्स अकेडमी को ज़रूर कॉल करना गाइस इस पर्टिकुलर नंबर पर या फिर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर अदर गाइडेंस की ज़रूरत है इंटरव्यू से पहले तो गाइस आप मेरे नंबर पर पर्सनल नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाटएवर 9802498842 ठीक है गाइस? तो इंजीनियर्स अकेडमी का नंबर भी आपके पास है, मेरा नंबर भी आपके पास है। आप लोगों को किसी भी तरह के असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो गाइस आप लोग बेफ़िक्र कॉल कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं हम लोग नई वैकेंसी के लिए और नए सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.